Welcome back. Yes, Nandini, it was my mistake. There's no one session, but two sessions. So now we got some time. Actually, in this locality, there's some Christmas party is being organized. So now my ears are blocked with that DJ sounds. I don't know. It's creating some noise at your end. Is it the audio is clear from my end? Yeah, totally clear. Okay. It's So clear. can you please ask that? You could ask that DJ to play a better song next time for the next session. Just joking, just joking. Yeah. Great. So, yes, two sessions are there. So let's proceed with the content. Then we will have more time to discuss and reflect upon that. So the four factors we have covered: radiation, air, water, and solid food. The natural state of being is being discussed in this particular column. So conservation through inquiry. So this column consists of the natural state of being. Now let's see, under the movements, we have three aspects: joints and spines, sleep, and sexual understanding. So let's try and understand these things. Siddharth Ranjan Das. Let us interact a little bit. Hello, Siddharth sir. Siddharth sir, can you hear us? Siddharth Ranjan Das. You are mute. What is he saying, sir? No, he's not saying anything. Just I saw him without interacting, attending every session. So I just wanted to interact with him. Siddharth sir, can you hear? Yes. Can you say? I do hear. Yes. Sir, any reflection, any input from your side? No, sir, So this is my first time involvement, and I am interested to listen anything, so everything. I am interested to listen everything. Okay. Thank you, sir. Really appreciate your patience. Thank you. Thank you. Right. So the next factor, that's a joint and spine. In Nature Cure Fraternity, the importance of spine is very much. Why? Because the spine is the bridge between the brain and the rest of the body. So unless the spine is healthy, the body is not healthy, and the health of the spine actually depicts a lot of health issues, because the spine is well knitted, connected throughout the body. So the toxicity, wherever it is getting accumulated, the sensitivity can be assessed through the spine. So spine examination and spine health is given a lot of importance in Nature Cure Science. Now let's look at it under the lens of inquiry also. The joints and the spine are subject to effortless movement. That's the natural state of being. The movement is not a task for organism. The movement is not a task of organism, and the balance is also a natural state of being. So, for example, balance means the load on both the feet actually bring a balance in the spine. And that is what we are structured to. But in the living process, we actually go haywire and the balance get imbalanced. If we look at our standing posture, sitting posture,
all these things may not be in the balance. We can see it. But when we are born, that time it was absolutely in the balance. So these observation can be made on the joints and the spine. And the effortlessness is actually natural state of being. If it is taking effort, then there is some toxicity that is bothering and bringing the effort. So for example, if you are putting effort in walking, like walking is not effortless, that means there is some toxicity that is definitely ongoing. So it is a compromised energy that is definitely there, which is leading your state of toxicity. So these all understanding is very much pertinent in understanding the complete health. If we are in denial and considering that, okay, this is my health, this is my state of health, then we'll stay in denial, and the toxicity in that bargain, the toxicity increases. Right? Now, the conditioned state are the kind of sedentary lifestyle that we have opted in our current living. In the jungle state, suppose we are in a natural designated space of jungle. We just came in the jungle and we have to survive there. So the food is not the single concern. There are other threats also in the jungle. So that means that mobility is very much important for us to survive in the jungle. Where has that gone? That mobility, that effortless mobility. So the sedentary lifestyle that we have opted, and we give a lot of reasons and intellectualize that particular lifestyle that we have opted. We are taking day-long workshops, and that is the reason we have to sit. So this is a reasoning. This is intellectualizing and just protecting this protocol of sedentary lifestyle. Do you see this? And then come the obsessed or ideated exercises, enforcement of exercises, gymming, enforcing some protocols of exercises, and following it not effortlessly, but as a goal, just to achieve some health goals. Do you see that? Why only gymming? No, why not the other normal so-called We mentioned that. exercise? We which mentioned we- that. We mentioned that. Perhaps missed. Yes, Okay. all sides, all types of exercising, not only gymming, obviously. Any kind of methods that we pick up for the improvement of or compensating the. So here the approach also makes a lot of sense. Do we look at the exercise as compensation of that effortless movement, or do we look at the exercise as a treatment or bettering the health state? That's also that narratives, that particular processing. How do we process it internally? Are you able to comprehend this? So probably Your bandwidth is about poor. it. Your bandwidth is Mhm. poor. I'm getting notification from your end. Your bandwidth is poor. Yeah. हाँ अंजू जी? जैसे किसी को सर्वाइकल होता है ना, तो सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगा, तो हम एक्सरसाइज को एज अ ट्रीटमेंट लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो गलत है आपके हिसाब से? नहीं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। गलत और सही अच्छा, का गलत। तो डिस्कशन ही नहीं हो रहा। नेचुरल नहीं है वो। हाँ नहीं, पर हमें सर्वाइकल हुआ क्या, क्यों, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, या जस्ट सर्वाइकल से मुझे छुटकारा मिल जाएगा बस, और मुझे कुछ नहीं है? क्योंकि सर्वाइकल जो है वो एक छोटा सा हिस्सा है पूरे का।
हम अगर सिर्फ ऐसा मनसा रख रहे हैं जो सर्वाइकल से तो भाई छुटकारा मिल जाए, तो फिर छुटकारा कभी मिलने ही वाला नहीं। ये दिख रहा है क्या हमें? हम पूरा हेल्थ को समझने की मनसा रखते हैं या सिर्फ एक सिम्टम्स से छुटकारा पाने की मनसा रखते हैं? ये हेल्थ को क्वेश्चन है। समझने। ये क्वेश्चन है। अगर सिर्फ मुझे ये छुटकारा चाहिए, इसी सर्वाइकल से मुझे छुटकारा दे दोगे, ये मनसा है, तो रेस्ट इज एंश्योर्ड, मुझे छुटकारा मिलने ही वाला नहीं, मैं और जकड़ा जाऊंगा। कुछ देर के लिए हो सकता है मुझे लगे जो छुटकारा मिल गया। तो किस तरह से मैंने एक्सरसाइज को, फिजियोथेरेपी को पिकअप किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साइकोलॉजिकल स्पेस में। एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट स्पेस। हाउ आर वी ऑपरेटिंग? हाउ आर वी ऑपरेटिंग साइकोलॉजिकली? We are not deciding or judging the modus operandi. We are trying to understand the mode of operation in the psychological space. Can we understand that particular psychological space of us? Individually, specifically. Can we look at the facts? Sleep is the next factor. Any repetition or any further clarification of any factor, we can revisit. We have time now, another extra Sir, session. excuse Yeah. me. Yeah. Sir, it means if we are doing yoga and any exercise, not for the prescription or as a treatment, but Hmm. we are doing it as a general, Yes. then it's natural or unnatural? It's natural. It's absolutely natural. If we are not attached to a goal, that through this yoga I am going to achieve something specific, ये अगर मनसा है, ये मनसा आपको खुद को देखना पड़ेगा। आपका सिर्फ योगा करने से कोई प्रूफ नहीं होता है, कुछ प्रूफ नहीं होता है। वो कैसे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप योगा कर रहे हो, बस आप योगासन कर रहे हो, ये आपका मनसा क्या है ये आपको दिखेगा। हम उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कैसे कर रहे हैं, अंदरूनी तरीके से क्या चल रहा है, उस चीज को हम कैसे देख रहे हैं अंदर से। और हम क्यों कर रहे हैं सर, वो भी ना? हाँ, वही पूरा होल प्रोसेस तो वही है ना, क्योंकि साथ ही तो मिलके आएगा, वो फाउंडेशन तो वो बनेगा। तो सर जैसे अभी अंजू जी ने बोला हाँ। कि इफ वी हैड अ सर्वाइकल, यस, तो वो सर्वाइकल क्यों आया? फर्स्ट वी हैव टू गो टू द रूट ऑफ द सर्वाइकल। आर वी इंटरेस्टेड इन दैट और जस्ट मुझे भाई छुटकारा दे दो भाई सर्वाइकल से, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये अंदरूनी ये I चाहिए। am interested, हाँ. if I am interested why cervical has occurred, and if I came to know the truth that cervical has occurred due to some toxins, and it is showing the symptoms because body is trying to get rid of that toxin. It is the detoxification process. हाँ, इस In तरह that अगर कुछ समझ आ रहा है फिर हाँ, in that detoxification process, if we include yoga also, so नहीं, it is योगा natural. किस लिए? हमारा जो नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है इसको हम समझ रहे हैं इसके साथ। जो हमारा नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है एफर्टलेस मूवमेंट, जो हमने कंप्रोमाइज कर डाला क्योंकि हमें नौकरी करना था, क्योंकि फलाना रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंजाम देना था, ये सब तर्क लगा के हमने सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपना लिया और हमारा जो नेचुरल मूवमेंट है वो कंप्रोमाइज हो गया। तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है अभी और सर्वाइकल में नहीं है, मेरा जो नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग जो कंप्रोमाइज्ड हो गया था, मैं अभी कंडीशन लाइफ लीड कर रहा था, ये मुझे दिख रहा है कि नहीं, ये मेन मुद्दा है। आपको समझ में आ रहा फर्क थोड़ा सा? सर वापस एक मिनट बोलिए। हम अगर ये सर्वाइकल का जो स्टेट है, मुझे सर्वाइकल पेन हो रहा है, ये मुझे दिख गया, अभी मुझे ये मेन मुद्दा नहीं है मेरे लिए, जिस सर्वाइकल से मुझे इजाद है,
इजात मिलना है, क्योंकि वो एक छोटा सा हिस्सा है, ये भी मुझे दिख रहा है। मुझे होल लाइफ को मैं अभी टटोल रहा हूं और मुझे ये दिख रहा है जब मेरा लाइफ डिजाइंड था एफर्टलेस मूवमेंट के लिए, और वो एफर्टलेस मूवमेंट मेरे जिंदगी से चला गया, कुछ भी कारण हो उसके पीछे। हाँ हाँ, तो सर मैं जहाँ तक आप समझ पाई कि आप ये बोल रहे हो कि आई एम डिजाइन फॉर द एफर्टलेस मूवमेंट, यस, ठीक है, आई गॉट द सर्वाइकल। अब मुझे पता है कि मुझे योगा इसलिए इंक्लूड करना है कि वो मेरा मतलब एफर्टलेस मूवमेंट जो मैंने छोड़ दिया है, उस एफर्टलेस मूवमेंट के लिए मुझे योगा करना, नॉट फॉर द सर्वाइकल। हाँ, ये अगर मैं समझ रहा हूँ, एज ए होल योगासन को समझ रहा हूँ जी, ये जो मूवमेंट है दैट कुड कंपेंसेट माय एफर्टलेस स्टेट ऑफ मूवमेंट। मैं सर्वाइकल से मेरा जो इजात मिलना है, छुटकारा मिलना है, ये हो सकता है बाय प्रोडक्ट हो जाए, मैं इसके लिए तैयार हूं। यानी कि ये क्वेश्चन भी मैं खुद से कर रहा हूं, जो कल ऐसा हो जो मेरा सर्वाइकल खत्म हो गया, मैं योगा बंद कर दूं या कंटिन्यू करूं, ये सारा क्वेश्चंस आ जाएगा एसोसिएटेड, समझ रहे हो आप? जैसे हाँ, अगर आप खुद का एक बीमारी दूर करने के लिए फल खा रहे हो, तो आप मेडिसिन के तरह फल खा रहे हो, आपको समझ ही नहीं है जो फल आपका डिजाइन फूड है, इसका कुछ फायदा नहीं है। सर यहाँ पर, हेलो हाँ जी सर। सर, यहाँ पर अगर जैसे योगा होते हैं फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड्स और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल या एनी अदर डिजीज, तो वो हाँ तो जी। एक सुपरफ्लुअस बात है ना, और स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर पोस्चर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज आल्सो वेरी अननेचुरल। यस यस। सो वी कैन नॉट फोर्स अवर बॉडी अनलेस अनटिल वो तो जब उसकी डिमांड है अंदर से कर रहा है तब तक तो ठीक है, बट जब तक हम उस पे उस आसन पे इतनी देर स्टे कर नहीं सकते और फोर्सफुली करें, देन इट इज अननेचुरल, दैट इज नहीं, गोइंग टू वही है सर, अगर आपका डिस्पोजिशन आ गया होल के प्रति, जो होल आपका डिजाइन स्टेट ऑफ बीइंग है एफर्टलेस मूवमेंट, उसको कंपेंसेट, अभी मेरा जो लाइफस्टाइल चल रहा है इसमें एफर्टलेस मूवमेंट तो मेरा खत्म हो गया सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, तो मैं इनिशिएट कर रहा हूं मेरा डिजाइन को सपोर्ट करने के वजह से, कोई एक स्पेसिफिक गोल के वजह से नहीं मैं कर रहा हूं, तो फिर आप खुद को ऐसा दबाव नहीं डालोगे। आपको अगर तकलीफ होगा तो आप छोड़ दोगे। आप समझ पा रहे हो रविंद्र सर? जी सर जी। तो ये जो हमारा जो मेन अंडरस्टैंडिंग है, अप्रोच है, उस अप्रोच की बातें हो रही है। अतुनो, you unmuted in between. So it is No, totally that you got it individualized actually. yoga. It's lifestyle. It's Yes, whole yes, lifestyle changing. yes, yes. It's not As for about me a also, specific thing. Yes, yes, as Ravinder for ji. me also, it is totally individualized. Sometime I used to stay in that posture for 20 seconds, sometimes half a minute, sometimes 10 seconds. So that was very natural. But putting some bell की हाँ हर sorry आधे मिनट बाद मेरी बेल बजेगी तभी पोस्चर छोड़ूंगा, that is highly unnatural, that can harm the body, ना? So harm the body in terms of the energy depletion, yes, under Yes, any yes, condition, of course, energy depletion. whenever we are under any condition, there will be depletion of energy extra. Sir, Yes. आप वीडियो बंद कर दो मीनू, वीडियो बंद करके बात करो, क्योंकि आपका ना नेटवर्क पोर है। अभी ठीक है सर, सुनाई दे रहा? हाँ, सुनाई दे रहा है, बताइए मैम। सर, ये जो नेचुरल मूवमेंट के इम्पोर्टेंस को जब हम समझ गए हैं, सपोज कर लीजिए, शायद हाँ, वही मैं कह रही हूँ, लाइक सपोज दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग द we are इम्पोर्टेंस trying ऑफ to अ understand. नेचुरल Yes, मूवमेंट, yes, या yes. then like opting for some specific whatever we may call it, yoga, exercise or anything, is not really necessary, as long as the inquiring is happening. Whether you do it or not, it doesn't matter. Am I comprehensible, sir? नहीं, समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो मतलब नहीं आया, हम किसी को अगर आया तो बताएं प्लीज।
मतलब मेरे हम को जहाँ तक जब समझ है ये कह रहे हैं कि अगर हम इंक्वायरी मोड में हैं देन देयर इज नो नीड ऑफ एनी फिजिकल पोस्चर एंड फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा एंड ऑल. No need at all, नहीं, are you no saying need so? Confusion होता है ना, But it can be needed. no I'm needed not can, हाँ, saying no need about can the be confusion. need. I am saying हम चाहे वो चीज को करें या ना करें, हाँ, हम समझ रहे हैं कि वो उसका एक इम्पोर्टेंस है इन द हेल्थ, बट हम अगर उसको नहीं भी करते हैं टारगेटिंग दिस थिंग कि नहीं नहीं नेचुरल मूवमेंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, मैं अगर योगा नहीं करूंगी तो मतलब मेरा नेचुरल मूवमेंट कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा सोच के अगर कुछ एक नेचुरल मूवमेंट कर रहे हैं, हाँ, वो भी एक कंडीशन ही ला रहे हैं. यस 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 यस. हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि जब हम समझ रहे हैं तब उसको करना या नहीं करना उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा है. लाइक हाँ, मतलब एक्चुअली जो आप कहना चाह रहे हो वो शायद ये है जो आप कर रहे हो बट विदाउट एनी स्टिकीनेस कर रहे हो, जो करना ही है ऐसा तड़प के साथ नहीं कर रहे हो, और करना नहीं ही है ऐसा भी कोई तड़प नहीं. हाँ, ऐसा ही कहना चाह रहे अगर हो? वो, हाँ, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जब हम ये समझते हैं तो हमें लगता है कि अब तो ये तो करना ही है क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. दोनों हाँ, तरीके से हो सकता है. एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू हाँ, अंडरस्टैंड द स्टिकीनेस. या हम लोग एक्सरसाइज के बारे में स्पेसिफिकली एक पॉइंट दिख रहा है स्लाइड में, बट एक्सरसाइज के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उस स्टिकीनेस के बारे में बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली. यस यस यस. श्रेया, ऑब्सेशन टू योगा जो रहता है लोगों को, उसके बारे में Yes. बेसिकली आप बात कर रहे हैं कि योगा इज द ओनली द वे कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप योगा से हर चीज ठीक कर सकते हो. हाँ, मतलब जो ये हाँ, थॉट हाँ, प्रोसेस this अभी is- जो नया चलन आ गया है, यस यस, इसके बारे में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, उर्वशी जी प्लीज. सर मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके सेशन सुनते सुनते हाँ जी. जो जो होलनेस ऑफ एग्जिस्टेंस है उसको समझते हुए मुझे अपने बारे में ये या आपके शब्दों में कहूँ तो मैंने ये देखा, मैं देख पाई कि मैंने बहुत सालों पहले अपने खाने को अपने इमोशंस के साथ जोड़ लिया था, और whenever I'm happy I'm eating, whenever I'm sad I'm eating, whenever I'm enjoying I'm eating, celebrations I'm eating, और घर मतलब किसी चीज का कुछ भी हो गया I'm just eating. तो ये मैंने अभी मैं समझ रही हूँ, और उस चीज ने एक पैटर्न बना दिया मेरे अंदर, और उस पैटर्न ने कुछ डिसऑर्डर्स पैदा कर दिए जैसे डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब. पॉसिबली अब those are ये the क्या है? symptoms. Those are the These are symptoms. the Actually toxemia हुआ. Yeah. Actually तो translate मतलब तो हुआ toxemia. हाँ, बताए. okay, so these are actually accumulated toxins in Yes. different, और डॉक्टर्स ने उनको डिफरेंट नाम दे दिए. नाम दे दिया गया, वो तो चलो तो अलग जी. बात है. अब यहाँ मैं एक और चीज ये भी देख रही हूँ कि माइंड प्लेज अ ब्यूटीफुल गेम, कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम ना होती इन चीजों से तो मैं शायद चलती रहती इनके साथ भी, और वैसे ही अपने इमोशनल ईटिंग को Possibly. कंटिन्यू रखती, Beautiful. है ना? Yes. दिस yes. इज द थिंग विच आई हैव नोटिस्ड. लेकिन क्योंकि अब ये मेरे को प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये सारी चीजें मेरे को मेरी लाइफ को जिस तरह से मैं जीना चाहती हूँ मुझे उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर अब मैंने इसके लिए आंसर्स ढूंढने शुरू करे. देन केम रॉ वीगन डाइट एंड देन केम फ्रूटेरियन डाइट, एंड दिस इज ये नॉट अ सारी कॉमन पाथ. ये आपके लिए एप्लीकेबल है, किसी और के लिए ऐसा एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो और सकता. तरीके मैं से उसके. अपनी, यस. जी मैं अपनी हाँ, हाँ जी. कहानी आपके साथ बता रही हूँ. हाँ, मतलब तो अब ऐसा अगर इसको कहते हुए प्रस्ताव ये है कि दर्द होना जरूरी है, समझ आने के लिए दर्द होना जरूरी है, वो भी थोड़ा एक इंटरप्रिटेशन ही हो सकता है. आपके लिए ये लागू हो सकता है कि दर्द हुआ तभी आप इसको और टटोलना स्टार्ट किए और आपको दिखने लगा चीजें. जी जी हाँ जी. जी. Sir, many तो of them have अभी bought जब ये into this idea.
Yes, yes. तो Come. अभी जब ये चीजें मुझे समझ में आ गई हैं, हम्म। नाउ वो ये तो बिल्कुल एकदम सामने दिख गया मुझे कि इट वाज ऑल हैपनिंग जस्ट टू गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये समझ में तो आ गया, लेकिन अब ये इवन इफ आई ड्रॉप इट, द डिजायर टू गेटिंग रिड ऑफ दीज You cannot toxins drop or- it. You cannot drop it. We don't have any capability to drop it. okay, If it drops by itself, then only it gets dropped. ये भी समझना जरूरी है. okay, If it So gets even if I- dropped by itself, then only it is dropped. then it is dropped. Okay, again it is a target. Yes, So, it becomes a target. Na? You are dropping it. There is an I that is operating within you. That is operating still. Yes. मैं समझ गई आपकी बात। तो वो तो अपने आप होगा, वो मैं कर भी नहीं पाऊंगी शायद, मतलब हाँ, वो maybe- अपने आप ही होना है तो हो जाएगा, आपको दिख जाए तो होने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है। अभी मैं क्या देख रही हूँ कि मुझे मैं अपने आप को एक ट्रैप के अंदर देख रही हूँ, क्योंकि अब क्योंकि पैरामीटर्स बहुत अपसाइड डाउन है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको बताई भी जाती है ना कि इसके और 1 साल के अंदर आपकी ऐसी हालत हो जाने वाली है और 2 साल में ऐसी हो जाने वाली है। तो वो चीजों का डर भी है, ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि हम अभी तक क्या करते आए थे, और अब जो बॉडी है, बॉडी इज ओनली ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दीज टॉक्सिन्स बिकॉज ऑफ ये जो पैरामीटर्स अपसाइड डाउन दिख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बॉडी अपने आप काम कर रही है। लेकिन क्योंकि अब फियर ऑफ डेथ का पार्ट भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि जब तक बोलते हैं ना कि जब तक सांस जब तक है तब तक तो हम हैं ही ना, हम जिंदा तो हैं ही तब तक, हम तब मरने का इंतजार तो कर नहीं सकते कि हाँ। चलो भाई अब तो मैंने ये गलतियां कर ली हैं, अब तो मैं मरने का इंतजार ही कर लूं, बस अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, उस क्योंकि- इंतजार से भी कोई फायदा नहीं है, जब मौत होना है तभी ना? होगा। हाँ, वो तभी होना है। और बाय नेचर वी वांट टू लिव हैप्पीली, वी वांट टू लिव हेल्दीली, मतलब ये तो सभी व्हाट इज चाहेंगे, दैट कोई नहीं हैप्पीली? चाहता। व्हाट इज दैट हैप्पीली? है ना? वो भी क्वेश्चन करना है। मतलब एक ब्लिसफुल स्टेट Okay. इज समथिंग एल्स, जिसका कोई टारगेट नहीं होता है, बट जी। ये जो सो कॉल्ड कन्वेंशनल हैप्पीनेस है, उसका एक टारगेट है, ये अगर मिले तभी मैं हैप्पी होंगी। ये हैप्पीनेस है ही नहीं, ये कभी हमें मिल ही नहीं सकता है, हम दौड़ते ही रहेंगे मिलेगी। जिंदगी में। ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है। मैं मतलब मैं समझ रही हूँ, जैसे वो सहज भाव होता है, हाँ। that is I mean termed as bliss or maybe something like that. यस, यस। तो अब इस ट्रैप से क्या करें, मतलब इसमें रहें, इसको एक्सेप्ट कर ले, दवाइयाँ नहीं, खाते आप रहें? देखेंगे तो दिख जाएगा। वो जो रास्ता जो आप ढूंढ रहे हो ना, वो रास्ता अपने आप निकलता जाएगा। ओके, वो रास्ता आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है, वो रास्ता तो बना हुआ है ऑलरेडी। एक जी। डायरेक्शन उसका है, नेचुरली एक डायरेक्शन है उसका, वो उसको रेव करता हुआ ही जा रहा है। तो आप उसके साथ जस्ट अलाइन हो रहे हो, आप जस्ट सवार हो गए उसके ऊपर। ठीक है। अभी जहां जा रहा है उसको अगर जाने दिया जाए तो फिर वो एक मीनिंगफुल जगह पहुंच सकती है, पॉसिबिलिटी। ठीक है। Now चलिए। what next I had in my mind is कि अभी मुझे अवेयरनेस है कि मेरे बॉडी की कॉल भी यही है, एंड एज आई शेयर्ड विद यू कि मुझे वैसे भी बाय नेचर आई लव फ्रूट्स एंड आई वांट टू ईट देम मोर। लेकिन ये भी होता है कि मैं उसके साथ अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहती हूँ कि ओनली दिस एंड आई कांट डेयर टू हैव एनीथिंग एल्स। कौन तो अगर बांधने मैं के ये- लिए आपको जबरदस्ती कर रहा है? मेरी आप बीमारियां खुद छोड़ के नहीं, मेरी आप बीमारियां- खुद छोड़ के और कोई नहीं है इसके पीछे। आप जी, अगर जी, जी, जी। खाने वाला एस्पेक्ट को समझ रहे हो और हंगर को समझ रहे हो और हंगर का सेशिएशन समझ रहे हो, तो फिर हर बार आप नए सिरे से फल को देख रहे हो। अगर फल को देख रहे हो, आपके जी, सामने एक जी, जी। ऑप्शन है फल का, वो जी, है जी। एक अनमॉडिफाइड टेस्ट जो अवेलेबल है, आपके डिजाइन के साथ वो अलाइन कर रहा है। ठीक है। तो आप तो- पहले से वो प्रेस्क्रिप्शन के तौर पे ना देख के, अगर नए सिरे से हर बार अगर नया फ्रेश देख रहे हैं, जब मैं क्या खाऊं,
हो सकता है कभी ऐसा सिचुएशन हो जब आपको फल ही मिला ही नहीं और बहुत भूख लगा है, तो फिर क्या बड़ी बात है, आप तो इतना दिन रोटी खा के आए हो तो रोटी खा लो, रोटी खा लो, क्या बड़ी बात है, उसको इतना हवा बनाने का कोई जरूरत नहीं है। कोई और जरूरत नहीं है। पर ऑनेस्टली अगर आपके पास ऑप्शन है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है जो ऑप्शन क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ गया था, क्या अकाल पड़ गया था जो फल का सप्लाई नहीं फल कर नहीं। पाए, ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। जब आप न्यूट्रली क्वेश्चन करेंगे तो चारों तरफ से क्वेश्चन आएगा, समझ पा रहे हैं क्या जी, मैं चीजें? बिल्कुल समझ पा रही हूँ। हाँ, तो बिल्कुल वहां पर सही, रोटी का डिनायल नहीं है, बट वो रोटी पीछे चला जाएगा जब सामने आपका फल है, फल है तो ठीक है। ऑटोमेटिकली ये भी जाएगा। है, ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी शेयर कर रहे हैं। दैट्स हाउ इट हैपेंस एक्चुअली। यस, पॉसिबिलिटी। तो ये भी है एक चीज, और ये भी है कि वो जो ट्रैप था जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुंचा है, ये पूरा हाँ, जो माइंड बॉडी इमोशनल कॉम्प्लेक्स। ईटिंग का जो ये रिकॉग्निशन है, आइडेंटिफिकेशन जो आप शेयर कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर दिख गया, क्योंकि नॉर्मली क्या है, हम लोग इमोशनली ईट करते हैं बट डिनायल में रहते हैं, उसी को भूख का नाम ले लेते हैं। जो जी। मुझे तो बहुत भूख पर लग गया था, इतना गुस्सा आया मुझे भूख लग गया। मैंने किया हुआ है ये सब कुछ। तो हम भूख ही के गुस्से में नाम I जाके am ले रहे also हैं same. उसको। यू Same विल बी thing. सरप्राइज टू नो, मैंने गुस्से में पूरा पिज्जा खाया हुआ है। हाँ, फैमिली हाँ, साइज। क्योंकि भूख का नाम दे दिया ना गुस्से को, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। यही है। तो मेरे को ये भी है कि ये देख तो लिया है, बट बाय जस्ट बाय सीइंग इट I think is not helping me. I mean, it will take time or something like that. It's just kind of a आपके सामने बस रख रही हूँ मैं इस चीज को, कि देखने के बाद भी ये जा तो नहीं रहा है, मतलब आई एम स्टिल हाँ, इन अ फस विद दिस। दिख गया है, दिस कुड बी अ कंक्लूजन, क्योंकि या आप दिख तो गया है। देखे जा रहे हो, अभी भी देख रहे हो, ये है जी जी जी। प्रोबेबली अ फैक्ट। सो आई जस्ट बड़ा थैंक मैं यू, इस चीज थैंक्स से फॉर द बड़ी शेयरिंग। Sir, in थैंक this यू। case, can there be a stage where where the lalach returns? You know, the hedonistic tendencies, नहीं, chasing the pleasure, वो लालच रिटर्न्स करके कुछ होगा नहीं, वो लालच है ही है, नहीं होना। ऑलरेडी सप्रेस्ड पड़ा हुआ है, रिटर्न्स का क्या गया ही नहीं नहीं कभी। मतलब समझ गया. Then let's say for example somebody is on a fruit diet for a very long time, he understood everything. हाँ, Now he wants to try something अंडरस्टूड else. एवरीथिंग इज एन अजम्पशन। Assumption again. अच्छा ठीक है. So नहीं, आपको नहीं लग रहा? correct. Got it. ठीक है, सो ये स्लीप पॉइंट कवर कर ले। पूजा जी, आप कहेंगे कुछ? सर हाँ, कल्याण सर एक चीज पूछना था कि इसमें योगा वाला सेशन में पूछ रही थी मैं कि इफ आई एम डूइंग द हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट एंड आई एम मूविंग माय बॉडी effortlessly, there is a movement, then also I am doing the yoga, then it is the extra burden on my energy and on my body. वो आप बताओगे ना, क्या क्या सोच के कर रहे हो आप, क्या सर सोच है उसके सोच पीछे? नहीं कि बस एक जैसे रूटीन बोलते हैं या हाँ, बस करना है, ये रूटीन रूटीन में में है। ही तो हम जुगों से फंसे हुए हैं, ये रूटीन बना के ही तो हमारा कैद हम तैयार करते हैं। अच्छा तो अगर हम सोच के करते हैं कि नहीं हमने वॉक कर लिया, अब है ना आई हैव टू गो फॉर द ब्रिस्क वॉकिंग, और ये तो ये एक बर्डन ही हो गया फिर। किस लिए कर रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं ना खुद से, जे मैं ये ब्रिस्क वॉकिंग के लिए किस लिए निकल रहा हूँ, क्या है कारण, क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है इसका, कि बस या करना है बस मैं प्रेस्क्रिप्शन उठाया, बस फॉलो कर रहा हूँ? हाँ वो मान लो कि एक रूटीन है कि इतने बजे जाना है वॉक पे तो जाना है। इंसानी जो ये सफरिंग का प्राइमरी रीजन है ये फॉलोइंग, हम फॉलो करना स्टार्ट कर अच्छा दिए, जैसे कभी वॉक पे खुद जाता, कभी उजागर नहीं जैसे कर रहे हैं। कभी विदाउट एनी रीजन हमको वॉक पे जाना, दैट इज द नेचुरल स्टेट। अगर हम उसको रीजन बना के जा रहे हैं, दैट बिकम द अननेचुरल, इट इज द एक्स्ट्रा बर्डन। आप बताओ, ये सारे तो हम लोग अभी समझने की सर कोशिश ही वही कर रहे यही हैं। अंडरस्टैंड, हाँ नहीं, यही अंडरस्टैंडिंग है कि इफ उसमें कुछ शर्तीला कंडीशन लगा के शर्तीला अगर चीजें हो रहा है तो फिर वो नेचुरल क्या हो रहा है? अतनु, few seconds. Yes. If someone is telling that नहीं मुझे इच्छा नहीं हो रहा है चलने का, then हाँ, इच्छा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा?
पहले इच्छा, ये प्रपोजल एक इच्छा होने की इंडिकेशन था, अभी इच्छा नहीं हो रहा है। ये इच्छाएं क्या है, क्यों इच्छा हुआ था, अभी क्यों इच्छा नहीं हो रहा है, इसको दिख रहा है, ये हम देख रहे हैं कि नहीं। इच्छा पहले एट द फर्स्ट प्लेस इच्छा हुआ था, तभी अभी बोल रहे हैं इच्छा नहीं है, तो वो इच्छा होने का कारण क्या था, और अभी फिर इच्छा नहीं होने का क्या कारण, ये इच्छाएं क्या है। हाँ तो जैसे मैं सर क्या इच्छा नहीं इंटरेस्टेड है हूँ तो इच्छाओं को इच्छा समझने। नहीं है, मे बी सर ऐसा तो आज इच्छा नहीं है, क्यों आज टुडे आई एम फीलिंग वीकनेस इन माय बॉडी, आई एम फीलिंग टायर्ड, तो हाँ, माय तो ये बॉडी इज फिजिकल आस्किंग फॉर रीजन, द रेस्ट। ये फिजिकल हाँ तो माय रीजन है, ये बॉडी साइकोलॉजिकल रीजन नहीं है।